السلام علیکم ناظرین، خبر کشمیر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ دریائے جہلم خطرے کے نشان سے اوپر، جموں کشمیر میں سیلابی الرٹ جاری۔ ریاسی میں ویشنو دیوی یاترا مسلسل 9ویں روز بھی معطل، ضلعی انتظامیہ اور شرائن بورڈ کے اہلکاروں کی صورتحال پر کڑی نظر۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی کا کولگام کا دورہ، انتظامیہ کی بروقت کارروائیوں کی ستائش کی۔ کابینی وزیر سکینہ مسعود کا کولگام کا دورہ، زمینی صورتحال کا لیا جائزہ۔ اور نالا سندھ میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ، گاندربل پولیس ہائی الرٹ پر۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے بدھ کو سیلابی الرٹ جاری کیا ہے، کیونکہ لگاتار 2 روز سے ہونے والی موسلادھار بارشوں کے بعد جہلم دریا کا پانی خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہا ہے۔ اس صورتحال میں 2 افراد کی موت واقع ہو گئی ہے، متعدد لوگ پھنس گئے ہیں اور اہم شاہراہیں بند کر دی گئی ہیں۔ محکمہ آبپاشی اور فلڈ کنٹرول کے مطابق اننت ناگ کے سنگم مقام پر پانی کی سطح 25 فٹ کے نازک نشان سے اوپر چلی گئی، جبکہ پامپور میں بھی دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہا ہے، جس سے نشیبی علاقوں میں پانی بھر جانے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ سری نگر بھی رام منشی باغ پر پانی کی سطح 18 فٹ کے الرٹ مارک کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ادھر جموں خطے میں بھی منگل کی شام سے بارشوں کے سبب سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ انتظامیہ نے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ دریا، ندی اور کسی بھی آبی ذخیرے کے قریب جانے سے گریز کریں۔ محکمہ فلڈ کنٹرول نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر بارش جاری رہی تو پانی کی سطح مزید بڑھ سکتی ہے۔ تمام متعلقہ افسران چوکس رہیں اور فوری اقدامات کریں۔ جو افسران سیلابی ڈیوٹی پر تعینات ہیں وہ فوراً اپنی ڈیوٹی پر رپورٹ کریں۔ ضلع انتظامیہ نے امدادی اور ریسکیو ٹیموں کو ہائی الرٹ پر رکھا ہے اور نشیبی علاقوں میں کڑی نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر بروقت انخلا کیا جا سکے۔ جموں کشمیر کے ضلع ریاسی میں ترکوٹ پہاڑیوں پر خراب موسمی حالات کے باعث ویشنو دیوی یاترا بدھ کو مسلسل 9ویں روز بھی معطل رہی۔ حکام کے مطابق مسلسل بارشوں اور دشوار موسمی صورتحال کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے کٹرا بیس کیمپ سے یاترا کو روک دیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ اور شرائن بورڈ کے اہلکار صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انتظامیہ نے بتایا کہ تباہ شدہ راستوں اور سڑکوں کی بحالی کا کام جاری ہے اور یاترا کو اسی وقت بحال کیا جائے گا جب موسمی حالات بہتر ہوں اور 12 کلومیٹر طویل جڑواں ٹریک کو پہاڑی چوٹی تک یاتریوں کے لیے مکمل طور پر صاف کر دیا جائے۔ واضح ہے کہ یاترا کو 26 اگست کو روک دیا گیا تھا، جب علاقے میں مسلسل بارش کے باعث لینڈ سلائڈنگ پیش آئی تھی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کاٹرا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 212 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی خصوصی ہدایت پر وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے بدھ کے روز ضلع کولگام کا دورہ کیا اور حالیہ موسمی صورتحال کے باعث پیدا شدہ حالات کا زمینی سطح پر جائزہ لیا۔ وانی نے اس موقع پر ضلع انتظامیہ کولگام کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ افسران نے کل سے ہی ہنگامی بنیادوں پر عوامی مسائل سے نمٹنے کے لیے دن رات محنت کی اور بروقت اقدامات سے بڑی مشکلات کو ٹالا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ ریلیف اور رسپانس سرگرمیوں میں مکمل طور پر متحرک ہے اور عوام کی سلامتی اور سہولیات کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ مشیر وزیر اعلیٰ نے متعلقہ محکموں کے افسران سے میٹنگ بھی کی، جس میں ریسکیو، ریلیف اور بحالی کے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں تعینات افسران و اہلکاروں نے جس طرح فوری رد عمل دکھایا وہ قابل ستائش ہے۔ وانی نے متاثرہ عوام کو یقین دلایا کہ حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے اور کسی کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضرورت پڑنے پر مزید امدادی ٹیمیں اور وسائل بھی فراہم کیے جائیں گے تاکہ عوامی مشکلات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں
اور افواہوں سے دور رہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت زمینی سطح پر حالات کو مسلسل مانیٹر کر رہی ہے اور جیسے جیسے موسم بہتر ہوتا جائے گا بحالی کا کام مزید تیز کیا جائے گا۔ آج ہم چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پہ میڈم سکینہ یتو صاحبہ، میں اور باقی ہمارے تمام افسران ساؤتھ کشمیر کے ضلعوں میں گئے۔ حالات تو آپ کو پتہ ہی ہے بہت مشکل ہے، کافی بارشیں ہوئی ہیں، ہمارے دریاؤں نالوں میں کافی لیول بڑھا ہوا ہے اور اس کا سارا جو اثر ہے وہ جہلم پہ پڑتا ہے۔ اس کے کنارے جو بھی بستیاں ہیں ان کو کہیں کہیں ایویکویٹ کرنا پڑا، جہاں کہیں پانی گھسنے کا احتمال تھا ان کو وہاں سے سیفر جگہوں پہ لیا گیا۔ کچھ لوگ تو اپنی طریقے سے اپنے رشتہ داروں کے پاس گئے، لیکن ہماری جو کوشش رہی ہے، جو ہم نے کیمپس کھڑے کیے ہیں وہاں ان کو جو ہے اچھی سہولت دے کے وہاں رکھا جائے، ان کے کھانے پینے کی سہولت کی جائے۔ کوشش یہی ہے کہ کسی طرح سے کوئی جانی نقصان نہ ہو، کوئی ہمارے جو ہے لوگوں کی املاک ہیں، جو ان کی جائیداد ہے، اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ ہمارا فرض بھی ہے اور یہی ایڈمنسٹریشن کی کوشش بھی ہے۔ یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ڈی سی صاحب اور تمام افسران نے پورا متحرک ہو کے کافی محنت کی ہے اور امید کرتے ہیں کہ رات تک اگر اسی طرح بارش رک گئی تو لیولز کم ہوں گی اور ہم اس سیلابی حالات سے جو ہے باہر آئیں گے۔ کیا میسج رہے گی آپ کی طرف سے؟ اللہ کرے کہ پہلے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارشیں رکیں، ہمارے دریاؤں نالوں کی لیول کچھ کم ہو، اور دوسرا لوگوں سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ وہ ان بنڈوں کی طرف زیادہ نہ جائیں، آپ ان علاقوں سے دور رہیں۔ اس وقت کوشش یہ کرنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی ہدایت پر کابینی وزیر سکینہ مسعود نے منگل کے روز ضلع کولگام کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور حالیہ موسمی صورتحال کے باعث پیدا ہونے والے حالات کا قریبی جائزہ لیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سکینہ مسعود نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ کولگام پوری طرح متحرک ہے اور موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے شب و روز انتھک محنت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افسران اور فیلڈ اسٹاف نے عوامی مشکلات کے ازالے کے لیے ہر سطح پر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے جو قابل تحسین ہے۔ وزیر موصوفہ نے مزید بتایا کہ تمام محکمہ صحت کے افسران اور عملے کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ 24 گھنٹے اپنے ہیڈ کوارٹرز پر دستیاب رہیں تاکہ عوام کو بروقتی بھی امداد فراہم کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی اولین ترجیح عوامی جان و مال کی حفاظت اور ضروری سہولیات کی فراہمی ہے۔ سکینہ مسعود نے متعلقہ محکموں کے حکام کے ساتھ میٹنگ بھی کی جس میں ریسکیو اور ریلیف اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں کہیں ضرورت پیش آئے فوری طور پر مزید وسائل فراہم کیے جائیں گے اور عوامی مشکلات کو کم سے کم کرنے کے لیے انتظامیہ کو ہر ممکن تعاون دیا جائے گا۔ کابینی وزیر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں اور افواہوں سے گریز کریں۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ حکومت عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور کسی کو مشکل میں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ جانتے ہیں کہ یہ جو فلڈ لائٹ سچویشن ہے پورے جموں کشمیر میں اس ٹائم، اس لیے آنریبل چیف منسٹر صاحب نے صبح سب سے پہلے ایک میٹنگ لی ہے جس میں انہوں نے حالات کا جائزہ لیا ہے۔ اس کے بعد آنریبل ایڈوائزر صاحب اور میں جو ہے ہم لوگ اننت ناگ آئے، وہاں پہ ہم نے دیکھا پہلے سری نگر میں کچھ، ہم نے ریاض میں گئے، اس کے بعد اب کلگام آئے اور پلوامہ اینڈ شپیان جو ڈی سی صاحب ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی۔ ایڈمنسٹریشن جو ہے سچویشن اتنی زیادہ بھی ابھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو کرنا تھا ایڈمنسٹریشن نے آلریڈی کر دیا، جن لوگوں کو شفٹ کرنا تھا ان کو کر دیا آلریڈی، تو اگر کچھ اور بھی کرنا پڑے گا تو ایڈمنسٹریشن آلریڈی جاب پہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ سوچا تھا کہ اگر امیڈیٹ اور کچھ ضرورت ہوگی، نیڈ ہوگی جو کرنے کی ہے تو وہ ہم نے جائزہ لیا ہے، تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کرے کہ بہتر ہو سچویشن۔ لیکن آپ سب بھی دعا کریے اور لوگوں کو اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہیے۔ جیسے میں نے بھی دیکھا ہے کئی جگہ پہ لوگ برجز پہ کھڑے ہوتے ہیں، بند پہ کھڑے ہو جاتے ہیں فوٹوگراف کھینچنے کے لیے، تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سیف جگہ جانا چاہیے۔ اور ہاسپٹلز میں ہم نے آلریڈی ڈاکٹر صاحبان جو ہے ان کو انسٹرکشنز دی ہیں کہ وہ بھی اپنی ڈیوٹیز پہ اویلیبل رہے۔ باقی جو میڈیسن ہے یا باقی چیزیں ہیں وہ بھی آلریڈی ہے، لیکن اگر کہیں کچھ نیڈ ہوگی، کسی کو بیمار ہوگا یا کوئی بھی چیز ضرورت ہوگی، وہ آلریڈی میں نے ہدایت دی ہے کہ وہاں پہ ہم اس کو ریسکیو کر سکتے ہیں امیڈیٹلی۔ تھینک یو۔
जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। जम्मू के अखनूर इलाके में दरिया चिनाब की तोहयानी के दौरान फतू कोटली गांव में फंसे 44 अफराद को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज बीएसएफ के हेलीकॉप्टर के जरिए बाहिफाजत निकाल लिया गया। बीएसएफ के तर्जुमान के मुताबिक शदीद बारिश की वजह से दरिया में तोहयानी के बायस फतू कोटली तहसील अखनूर के गड़कुल इलाके में मुतादिद अफराद फंस गए थे। तर्जुमान ने बताया कि मुश्किल हालात के बावजूद बीएसएफ ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 44 शहरियों को हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। यह ऑपरेशन मुतासरा खानदानों के लिए बड़ी राहत साबित हुआ और एक बड़े नुकसान को टाला गया। बीएसएफ ने मजीद कहा कि सरहदी हिफाजत के साथ साथ शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी उनकी अव्वलीन तरजीह है। फोर्स ने यकीन दहानी कराई कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल में अवाम की मदद के लिए तैयार हैं। ये कार्रवाई ऐसे वक्त में अंजाम दी गई जब अखनूर में दरियाए चिनाब का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसके नतीजे में गड़खिल और परगवाल के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। हज़ारों अफराद मुतासिर हुए हैं। मुतादिद गाँव का सड़क राब्ता मुनक़ता है, जबकि क्लाउड बर्स्ट के बायस पलनवाला नाले में अचानक आने वाले सैलाब ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल देखी जा रही है। सासारा लार कनाल अत आब ज्यादा वनकस तिज अत गई सफाई जहूँ अत आए अकि दो फिर सफाई कर मगर तमो कर कैंचन जान जान सहल बासे बाकियन जान कर कुने अगर यह सफाई आ गम वनकस ग यह हाल बात कह सारसे गाँवस कोयलस वनकस आब कोयल सोरे आबस मज डूबित तिज वजह सोरे आब नमन आड़न कुन बुत सफाई ती गसान कहें 2014 मज गए थोड़ा सफाई रहा पत् 1-2 वरी द्राये तो बस तत पे कहें तत पे गई कल बिल्कुल जाम इन गई कहें त सफाई वनकस 100% खतर सानिस गाँवस नसब गाँव वनकस आबस मज डूबित नसब बस्ती वनकस पन्ने घरों मज नबर यम जन माल मवेशी तम तड़ नबर यम जन आबादी लूक तम द्राय पन्ने घरों मज नबर खतरस मज फसलस गोस तकरीबन 60% नुकसान कोयल गाँव गो 60% नुकसान दानस ूटन गई डिमांड सान नमन कलन गई सफाई गई ताकि आयन। नाला सिंध में पानी की सतह बढ़ने के बाद जिले गांदरबल पुलिस ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हिफाजती इक़दाम मजीद सख्त कर दिए हैं। SSP गांदरबल खलील पोसवाल की निगरानी में तमाम थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और अफसरान मुसलसल सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। इस मौके पर SHO गांदरबल ने डोडरहमा और गांगरहमा इलाकों में ऐलानात करते हुए अवाम से अपील की है कि वो इस दौरान नाले सिंध से रेत निकालने से गुरेज करें, क्योंकि इस तरह की सरगर्मियां इंसानी जानों के लिए खतरा बन सकती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि शहरी घरों में रहें और एहतियाती तदाबीर के तौर पर नाले के करीब जाने से भी परहेज करें। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया ने कहा कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और नशेबी और हसास इलाकों पर खुसूसी नजर रखी जा रही है। जिले कुलगाम में मुसलसिल बारिशों के बायस पानी की सतह बढ़ने और मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के बाद जिले इंतजामिया और कुलगाम पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने बड़ी तादाद में लोगों को महफूज मुकाम तक पहुंचाया। मुकामी बाशिंदों ने इंतजामिया और पुलिस की काविशों को सराहते हुए कहा कि अगर फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन न किया जाता तो जानी नुकसान का अंदेशा बढ़ सकता था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुश्किल वक्त में पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए फंसे हुए कई खानदानों को निकाला और महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरीन ने कहा कि इंतजामिया ने न सिर्फ फौरी मदद फराहम की बल्कि लोगों के साथ हर मुमकिन ताउन भी किया। जिले इंतजामिया के अहदेदार ने बताया कि तमाम महकमे हाई अलर्ट पर हैं और बारिश के बायस पैदाशुदा सूरत हाल पर गहरी नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि अवाम की सलामती और बुनियादी सहूलियात की फरहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। कुलगाम पुलिस के मुताबिक एहलकारों को मुख्तलिफ नशेबी इलाकों में तैनात किया गया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर फौरी इमदादी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर कान न धरें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर कंट्रोल रूम से राब्ता करें। गुज़िश्ता शब वार्ड नंबर 3 में शदीद बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग हुई, जिससे मोहम्मद आलम, गुलाम हुसैन और दानिश महमूद के 3 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम मुतासरा ख़ानदान शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मुकामी अफराद और इंतजामिया ने मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करके रिलीफ फराहम की है। यहाँ पे वार्ड नंबर 3 में हसप्लोट थाना मंडी में ये तकरीबन 3 मकान जो हैं ये 100% डैमेज हो चुके हैं, जिनमें एक मकान मोहम्मद आलम सना गुलाम हुसैन का है
दूसरा मकान दानिश सन ऑफ मोहम्मद बशीर का और तीसरा मकान जो है गुलाम हुसैन सन ऑफ मिठू का है। ये तीनों मकान जो हैं ये 100% डैमेज हैं। ये रहने के काबिल या बसने के काबिल नहीं है। इनके साथ इस वक्त इनके पास कोई दूसरी चारा नहीं है, कोई दूसरी जगह नहीं है, कोई रिहाइश ऐसी नहीं है जहाँ पे ये लोग जाके रह सकें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एसडीएम साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पर इनको कंपनसेट किया जाए और इनको कहीं दूसरी सेफ प्लेस के ऊपर जो है वो रखा जाए तब तक जब तक इनको कंपनसेट करके या दूसरी जगह पे ये लोग मकान बनाते या अपने ठिकाने रिहाइश का कोई ठिकाना बनाते। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त है, इस लैंडस्लाइड को रोकने के लिए जो वाल बनाने की ज़रूरत है। मेरी डीसी साहब से खासकर ये रिक्वेस्ट है कि ये वाल फौरी तौर पे इसका काम शुरू करवाया जाए ताकि इनका जितना और डैमेज हो रहा है वो ख़त्म हो सके, जितनी ज़मीन ऊपर से जो नीचे आ रही है वो रुक सके, क्योंकि रोड के इस पार इस किनारे पे आगे 5 एमएलए पामपुर हसनैन मसूदी ने आज रतनपुरा, पाहू, काकापुरा और पामपुर के दीगर सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने सूरत हाल का जायजा लेते हुए मुतासरीन से मुलाकात की और यकीन दिलाया कि मुतासर आवाम को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। रत्नीपुरा मुतासर है, मिनीपुरा तो बिल्कुल ही मुतासर है। तो सारी बस्ती में पानी दाखिल हुआ है। इसके अलावा जो भी जहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड वगैरह है, सारा जो पैडी वगैरह तो सारी पानी घेरे आबा है। तो यहाँ आने का मकसद ये था कि मौके पर जाकर ये कहना जाए कि क्या इकदाम तवील मुद्दे इकदाम किए जाने चाहिए और क्या फिर लॉन्ग टर्म में क्या क्या प्लान बनाना चाहिए। जो भी फ्लड मिटिगेटिंग प्लान होगा उस पर कहाँ पर हमें और मुस्तकम करना चाहिए अपनी सेक्टर। तो नुकसान बड़ा हुआ है बंदीपुरा में खासकर, और बाकी अगर अभी इकदाम नहीं किए गए जो भी किए जाने चाहिए, जैसे कहीं कहीं पर हमें ज़रूरत है कि बोट्स हो ताकि उनको रेस्क्यू किया जाए। जो आबादी फंसे हुए जो वहाँ के मकीन हैं, जो बुज़ुर्ग हैं या कोई सेहत से नासाज है तो उनको वहाँ से रेस्क्यू करने में ताकि मदद हो जाए। इसके अलावा सैंड बैग इस टंका पर भी लाया जाए ताकि जो अब इस वक्त किया जा सकता है। देखिए एक एमरजेंसी है, इस हंगामी सूरत हाल में जो भी कुछ किया जा सकता है वो सब करने की ज़रूरत है। दरअसल बात यह है कि हर जगह ये शिकायत मौसूल हो रही है कि जो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को जो इक़दाम करने चाहिए थे वो किए नहीं थे। आप जानते हैं कि 2014 में 80,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज आ गया ताकि आगे उस आजमाइश का सामना न करना पड़े जिस आजमाइश का सारे कश्मीर को सामना करना पड़ा 2014 में। लेकिन क्या हुआ कि वो जो भी कंसर्न अथॉरिटी थी दे सिलेक्ट ओवर द मैटर। कोई आज हम देख रहे हैं कि रतपुरा में खदरमू में वहीं पर ब्रीच हो रहा है, वहीं पर पानी अंदर दाखिल हो रहा है जहां 2000। श्रीनगर की नवाही इलाके टेलबल में बारिश के बाद पानी जमा होने से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। माजी में इस तरह में फ्लैश फ्लड और वाटर लॉगिंग के वाक़यात पेश आते रहे हैं जिसकी वजह से मुकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का मेरा नाम अली मोहम्मद बाटे में इंतजामी के मुताबिक सूरत हाल तशवीशनाक जरूर है, तहम किसी बड़े सैलाब की इमरजेंसी की तस्दीक नहीं हुई है। के वांगोड़ा एरिया से ताल्लुक रखता हूँ सर। पानी ने तकरीबन हर जगह तेलबल में दस्तक दिया है, जिसमें अस्तानपुरा आता है, डांगरपुरा, तेलबल, खौजाबाद, वांगोड़ा के कुछ एरिया और पैडी फील्ड जो यहाँ पर है उधर भी पानी घुसा है। रोड्स ब्लॉक है इसी पानी की वजह से। पहले भी पानी आता था लेकिन उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा नहीं होती थी जितनी इस बार है, क्योंकि पिछले 12 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। महादेव पहाड़ जो कि यहाँ पहलगाम साइड में पड़ता है उसका पानी इस बार काफी तादाद में यहाँ पर आया है। पानी यहाँ से पहले खुजबाग और उसके बाद अस्तानपुरा, डार मोहल्ला, इकबाल मोहल्ला, जितने भी एरिया यहाँ लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पर घुसा है तेलबल में। कि अगर हम बात करेंगे नुकसान काफी हुआ है। ज्यादातर नुकसान यहाँ जो पैडी है, पैडी फील्ड्स है, उनमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ था क्योंकि क्रॉप अभी हार्वेस्टिंग टाइम पे था, जिसके नतीजे में जो पानी आया और वो तकरीबन मुझे लगता है अगर 12 घंटे से ज्यादा उस पर पानी रहा तो वो खराब हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पर कुछ लोग आए थे जिन्होंने वो बोरिया वोरिया लाई थी और कई जगह पर उन्हें लगाए थी, लेकिन उससे तो कुछ नहीं होगा। सरकार को क्या चाहिए था, यहाँ पर जितने भी एरिया है या नदी नालों के नजदीक उनमें उनको बांध का काम लगाना था। इसकी जानिब से रेस्क्यू यहाँ हुआ है, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। कई जगह पर उन्होंने लोगों को सेफ जोन पे लिया है।
एडमिनिस्ट्रेशन की यही अपील है, यहाँ पर पोर्चो रोड साइड में एक गेट है जिसको फौरी तौर पर खोला जाए ताकि पानी की लेवल। PDP तर्जुमान मोहम्मद इकबाल तरामू ने बगात बरज़िला श्रीनगर के MET स्कूल ग्राउंड के मामले पर तशवीश जाहिर की है। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि इस मसले को संजीदगी से लिया जाए क्योंकि नौजवान इंतजामिया के फैसले से नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि खेल के मैदान नौजवानों के लिए सेहतमंद सरगर्मी और मुस्बत माहौल फराहम करते हैं, इसलिए उनके मफाद में कोई भी फैसला लेने से पहले अवामी राय को मद्देनजर रखा जाना जरूरी है। देखिए, ये जो लैंड बेसिकली अलॉट हुई थी अमेठी स्कूल को, ये कस्टोडियन की ज़मीन है और ये अलॉटमेंट स्कूल को हुई थी। अब रिपोर्टेडली उनका लीज पीरियड जो है ख़त्म हो गया है और इस वक्त जो हमको सुनने में आया है कि इलीगली ये ट्रांसफ़र की गई है पुलिस डिपार्टमेंट को। इलीगली मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि एक्ट बताता है, कस्टोडियन एक्ट, और हाई कोर्ट की भी रूलिंग है कि अगर कस्टोडियन प्रॉपर्टी को आपको किसी को अलॉट करना है, इसके लिए आपको मैंडेटरी है कि इसमें ओपन बिड हो जाए। इस किस्म की कोई भी बिड इस जमीन पर आज तक नहीं हुई है। इलीगली और कॉन्ट्ररी टू द रूलिंग्स ऑफ द हाई कोर्ट इसको अलॉट किया गया है। ये एक इलीगल ट्रांसफर है। ये कंसर्न हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, CM साहब, LG साहब को बताना चाहते हैं कि ये इलीगल चीजें जो हैं ये जम्मू कश्मीर में रुकनी चाहिए। ये नाइंसाफी जो हो रही है जम्मू कश्मीर में, ये बंद होनी चाहिए। जो प्रोसीजर है, जो लीगल वे है। ज़िले पुंछ में हालिया शदीद बारिश के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस ने अवामी बेदारी मुहिम शुरू की है ताकि शहरियों को दरियाओं और नदी नालों के करीब जाने से रोका जा सके। हुकाम का कहना है कि मूसलाधार बारिश के नतीजे में पानी की सतह अचानक और ख़तरनाक हद तक बढ़ सकती है, जिससे जानी और माली नुकसान का अंदेशा है। इंतज़ामिया ने अवाम को सख्ती से हिदायत दी है कि वो किसी भी सूरत हाल में दरियाओं के किनारे के करीब न जाएँ, खास तौर पर वो अफराद जो मछली पकड़ने या दीगर तफरीही सरगर्मियों के लिए इन मकामात का रुख करते हैं। इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया कि लम्हा भर की गफलत बड़े हादसे का सबब बन सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम की रहमत से उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के तो सभी खुशियाँ जहाँ में खुशियाँ मना रहे हैं। आज जो हमारी ये मिलाद रैली है, तमाम जितने भी हमारे मदारिस इस्लामिया हैं उनकी तमाम तलबा की ये मिलाद रैली है। इंशाअल्लाह रहमान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदहो सराई करते हुए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताकि खुशी में जो है 1500 साला जश्न जो मना रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम उम्मत मुस्लिमा को ये खुशी का दिन अता फरमाया, क्योंकि सदी भी बराबर हो रही है। माशाअल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। इससे पहले कितने आए। MLA राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने आज अपनी असम्बली हल्के के मुख्तलिफ सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने सूरत हाल का करीब से जायजा लिया और मुतासरीन को यकीन दिलाया कि हुकूमत उनके साथ खड़ी और हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। देखिए, हालिया बारिशों की वजह से जो ये रुमशी नाला है या रिम्बी आ रहा है या सास आ रहा है, वहाँ इसमें पानी के बहाव में इजाफा हुआ है और तुगयानी की सूरत हाल इन नालों ने अख्तियार किया है। इस वक्त मैं इस वक्त दौरे पर हूँ, चाहे वाहिबुगा ब्रिज हो, चाहे रोमुआ ब्रिज है या जो ये नाले हैं उन्हीं को देखने के लिए, और सैलाब की क्या पुशन है, पानी की क्या पुशन है इस वक्त इन नालों में, वो देखने के लिए इस वक्त मैं घूम रहा हूँ। तो और अगर बारिश रुक गई तो ज़्यादा नुकसान होने का खतरा नहीं है, लेकिन अगर बारिशें और हो गई तो ये नाले जो है तुगयानी बढ़ जाएगी, पानी के में इजाफा हो जाएगा और इससे फिर खतरा है जो इस नदी नालों के किनारों पर जो इस वक्त गाँव, इस वक्त जो देहात रह रहे हैं उनको फिर खतरा हो सकता है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अब बारिशें चूँकि काफ़ी हुई है, अब रुकनी चाहिए बारिशें। अगर मज़ीद इजाफा बारिशों में हो गया तो इन जो इनके नदी नालों के किनारों पर रहते हैं, चाहे रोमशी नाले पर, चाहे सासारा पर, चाहे रिम्बी आरा पर, तो उनको खतरा लाक हो सकता है। तो फिर उनको हमें उन गाँवों से निकाल। ज़िले कोलगाम में खराब मौसमी हालात के पेश नज़र चमनगल पुल पर ट्रैफिक की आमदरफ्त को अगले अहकाम तक बंद कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक यह फैसला डिप्टी कमिश्नर कोलगाम की हिदायत पर मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। महकमे R&B कोलगाम के मुताबिक पुल की अप्रोच साइड को शदीद बारिश के बायस जुज़वी नुकसान पहुंचा है और
यहाँ पर मौजूदा सूरत हाल की मुख्तलिफ AE की क़यादत में टीमें निगरानी कर रही हैं। पुल के मुतासरा हिस्से की मरम्मत के लिए हंगामी बुनियादों पर काम किए जा रहे हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोलगाम भी अपनी टीम के हमरा मौके पर मौजूद हैं ताकि बहाली के काम का जायजा ले सकें। खराब मौसम के मद्देनज़र और जो अभी आप देख रहे हो जो वैष्णो नाला में जो वाटर लेवल अभी इंक्रीज़ हुई है और यहाँ छमगुड़ ब्रिज में जो क्रेट वर्क है थोड़ा सा डैमेज हुआ है, तो एक्जन RNB भी यहाँ पे है, तो इसे मशवरा करके DC साहब की तरफ से भी डायरेक्शंस आई है कि ये जो छमगुड़ ब्रिज है इसके ऊपर जो गाड़ियों का आमद रफ्त है उस पर भी फिलहाल पाबंदी की गई है और तमाम जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स है या व्हीकल ड्राइवर जो भी है उनसे दरख्वास्त रहेगी कि वो अपनी गाड़ियों का आमद रफ्त यहाँ छमगुड़ ब्रिज के ऊपर ना करे। हम देखेंगे कि अभी इस पर थोड़ा सा काम चल रहा है, काम थोड़ा कंप्लीट होने के बाद ही हम और एक एडवाइजरी जारी करेंगे। हम देखेंगे कि जो ये छमगुड़ का ब्रिज है अगर काबिल आमद रफ्त होगा तो अकॉर्डिंगली फिर उसके बाद ही जो व्हीकल ड्राइवर्स है, जो व्हीकल ऑनर्स ऑपरेटर्स है वो अपनी गाड़ियाँ चला सकती है। तो फिलहाल दरख्वास्त यही रहेगी कि ये जो ट्रैफिक छमगुड़ ब्रिज के ऊपर है ये नहीं रहेगा। फिलहाल लोगों से दरख्वास्त यही रहेगी कि वो अपनी वस्ती कश्मीर की ज़िले गांदरबल में मुसलसिल बारिशों के बायस नाले सिंध में पानी की सतह बढ़ने लगी है, जिस पर ज़िली इंतज़ामिया ने अलर्ट जारी किया है। हुकाम ने खासतौर पर नशेबी और सैलाब से मुतासर होने वाले इलाकों में रिहाइश पजीर शहरियों को हिदायत दी है कि वो मोहतात रहें और दरियाओं के किनारों के करीब गैर ज़रूरी आमदरफ्त से गुरेज करें। इंतज़ामिया ने गांदरबल पुलिस के साथ मिलकर अवामी सहूलत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं ताकि किसी भी हंगामी या सैलाबी सूरत हाल में लोग फौरी तौर पर रब्ता कर सकें। हुकाम ने कहा कि तमाम मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी गई है कि वो किसी भी हंगामी हालत से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। नाला सिंध में बराबर पानी में इजाफा होता रहता है। तकरीबन अगर हम देखेंगे 1 घंटे में तकरीबन 10 इंच का इजाफा हुआ है और इस टाइम 3.53 की जो स्केल है वो पानी चढ़ गया है। बहुत हालात बहुत ख़राब है। खुदा करे कि इस आफत से हमें नजात मिले। जो आने वाला जो इससे पहले जो 2014 में सैलाब आया था वैसे ही आज वही वक्त है, वही सिचुएशन है। खुदा करे कि हम किसी भी कुदरती आफत से बच जाए। इस्तिदा सबसे है। मैं अपने आप से भी पहले कहता हूं कि मुझे नाला सिंध के किनारे पे जाना नहीं चाहिए। हमें मोहतात रहना चाहिए एज पर गवर्नमेंट एडवाइजरी। गवर्नमेंट ने पहले ही हमें इस बात की एडवाइस दी है कि हम कहीं भी, चाहे वो नाला सिंध हो, चाहे वो कोई और दरिया जहलम हो, कोई भी दरिया हो, हमें उससे दूर रहना चाहिए। देखिए कि पहले ही जो वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट ने यहाँ पे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उन्हें फोरकास्ट किया है, उस फोरकास्ट के एन मुताबिक कल दिन से ही बारिशें होती रही है और उस सिलसिले में यहाँ पे जो वाटर लेवल है उसमें और नाज़रीन आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। दरियाए जहलम खतरे के निशान से ऊपर, जम्मू कश्मीर में सैलाबी अलर्ट जारी। रियासी में वैष्णो देवी यात्रा मुसलसिल 9वें रोज भी मुअत्तल। जिला इंतजामिया और श्राइन बोर्ड के एहलकारों की सूरत हाल पर कड़ी नजर। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी का कोलगाम का दौरा, इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाइयों की सताइश की। रियासती काबीनी वजीर सकीना मसूद का कोलगाम का दौरा, जमीनी सूरत हाल का लिया जायजा। और नाले सिंध में भी पानी की सतह में गैरमामूली इजाफा, गांदरबल पुलिस हाई अलर्ट पर। और नाज़रीन इसी के साथ खबर कश्मीर का सिलसिला फिलहाल ही इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।